सर्कल मोटा मोटा व्हाट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर, नहीं ग्रेविटेशन, वही मैं बोल रहा हूं, सर्कल। ठीक है, तो सर्कल क्या है ये आप सबको पता है। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट which is equidistant from a given point, and that given point is called its center. We will see what all in this chapter we are supposed to understand. In this chapter we should have a fair bit of idea of what is a chord, some theorems related to chord, what is an angle subtended by a chord, what do you mean by angle subtended by a arc, what is an arc, and then what are the relation with those angle subtended. अगर आपको ये कहानी आता है तो आप सारे प्रॉब्लम कर पाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें आपके दो प्रूफ शायद क्वालिफाई होते हैं, एक है equal chords are equal chords subtend equal angles at the center, that is one, and then angle subtended by a chord. I don't think that is, does that qualify for the proof? We have to see the CBSE syllabus. I think there's only one proof that qualifies. The other one also qualifies? Yeah, fine, no issues. So let's start with some basic idea about circle. So what is circle? Circle is a collection of points. Later you will understand, when you go to higher classes, you'll come across a word called, you'll come across a word which is known as locus. Locus. Locus means any set of points which satisfy a given condition. So what is circle? ये जो line दिख रहा है ना, line नहीं है basically, अनगिनत points हैं. Circle is a set of points which are equidistant from a given point, and that given point is known as its center. तो set को थोड़ा सा अच्छा English कर दिया. Circle is a locus of point. Locus means any collection of points which obeys certain condition. In the case of circle, the condition is that they should be equidistant from a given point. Clear हो गया? Given point is known as the center, and the other part is known as your circumference. So here we are not dealing with mensuration. Otherwise, you should know that the circumference is 2 pi r, or pi times the diameter, and the area is pi r square or pi d square by 4. जैसे भी करें बात सही होता है, ठीक है? Now locus हमने जान लिया. पहला चीज हमें जानना पड़ता है chord क्या होता है. फटाफट. Chord. Chord is a line segment, not a line. Is a line segment that actually joins any 2 points on the circumference. Chord is a line segment that joins any 2 points on the circumference. तो circumference पे any 2 points. सर्कल से इतना प्यार क्यों इसको? Any 2 points. देखो हद हो गई यार. Any 2 points. ये chord है. Are we fine with chord? ठीक है, चलिए chord को नाम दे देते हैं. ये हो गया A और ये हो गया B, और ये B के साथ आइए केंद्र बिंदु इस सर्कल का, जिसको हम कहते हैं O. A chord is a line segment which joins any 2 points, right? So you can have different sizes of chords, छोटे से लेके बड़े. The longest chord that is possible in a circle is its diameter, which actually joins 2 points. They are diametrically opposite to the center. Diametrically opposite, है ना? ठीक है, ये भी क्लियर हो गया. अच्छा, इसके बाद तीसरे थ्योरम पे आते हैं, और तीसरे में आपका पहला थ्योरम जैसा कुछ आ जाता है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एंड इट सेज equal chords subtend equal angles at the center. यहां पे दो वर्ड पहले समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है ये subtend. Subtend का मतलब क्या होता है? Subtend means think yourself as if the 2 points on either side of your shoulder blade are the 2 points. I am the chord, and the chord starts from this shoulder blade point to this point, and then your 2 hands are the radius. हजूर माफ कर दीजिए, ऐसे करके सेंटर को पकड़ लेने का. हजूर माफ कर दीजिए. जो एंगल बना वही है एंगल सबटेंडेड बाय chord at the center. समझ में आ गया? नहीं भूलोगे अभी. उसी तरह ये तो हो गया chord, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. chord बड़ा हुआ तो वो और बड़ा, 56 इंच का पहलवान है, हजूर माफ कर दीजिए. मैं माफी तो मांगना ही पड़ेगा, और हाथ क्या हो जाएंगे आपके? रेडियस बन जाएंगे. क्लियर है अब? ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और चीज के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, और वो चीज है आर्क. क्या होता है आर्क? When you actually get these 2 points, which are the end points of your chord, then you have a straight part which is known as the chord, and you have a part of the circle, and this is known as the arc. समझ में आया? अब यहां से यहां अगर हम देखें, यहां से यहां, तो ये है A to B, and in circle the rotation is always necessary, so we should always see the circle like this. Your wish, you can see it clockwise or you can see it anti-clockwise. Why that? Because
इफ आई ट्राई टू मेंशन ए बी, आप कैसे मेंशन करोगे? बी ए मेंशन करोगे कि ए बी? तो मैं कहता हूं मेरा सर्कल ऐसे घूम रहा है, दिस इज जस्ट व्हाट डू से प्रोटोकॉल और नोमेनक्लेचर, वेरी गुड, इट्स अ नोमेनक्लेचर। मैं ए बी मेथड में देखता हूं और इस ए बी मेरा आर्क बन गया, ठीक है। अगर ए बी आर्क है तो बी ए भी तो आर्क है, हाँ बी ए भी आर्क है, ठीक है ना। ये आर्क बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। ये आर्क छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। लघु और दीर्घ, समझ में आ गया आपको? एक माइनर आर्क, एक मेजर आर्क, बहुत अच्छा। ग्रेड 10 में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, पापड़ का टूटा हुआ टुकड़ा। ये जो क्वेश्चन टूट गया इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, जान के रख लीजिए, तो 10 में फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसको कहते हैं सेगमेंट। तो कैसे तोड़ते हैं? छोटा भाई होने से तोड़ के, भी अरब कैसे तोड़ के छोटा वाला भाई को देगा, तो उसको क्या मिला? माइनर सेगमेंट। और खुद के हाथ में क्या रह गया? मेजर सेगमेंट। आर वी फाइन? ठीक है, अभी हमें वो करना पड़ेगा, कौन सा? हुजूर माफ कर दीजिए वाला पार्ट, हुजूर माफ कर दीजिए। When you do this, हुजूर माफ कर दीजिए, you actually brought the radius of the circle into the picture. Do you agree or not? Yes. In this case, there are again two geometric figure formation. If you look at OBA, it is a triangle, tribhuj, and it's an isosceles triangle because these two limbs are the radius. Isosceles triangle है तो फिर भाई साहब इसके बेस भी इक्वली तो होंगे, ठीक है ना, इसके बेस भी इक्वल होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ओ बी और ए कर्व के साथ लेते हैं ना, देन द पिज्जा का टुकड़ा जैसा जो निकल के आएगा, क्वार्टर ऑफ पिज्जा, देन दैट इज नोन एज अ सेक्टर। तो दो वर्ड्स हमने यहाँ पे सीखे, हालांकि इतना जरूरत नहीं है ग्रेड 9 में, पर जानने में क्या फर्क होता है, सेक्टर एंड सेगमेंट। एनीवन हैज इशू विद सेक्टर एंड सेगमेंट? सेगमेंट इज ऑलवेज पापड़, always remember, सेगमेंट बोले तो लिज्जत पापड़, एंड सेक्टर बोले तो डोमिनोज का मार्गरीटा पिज्जा, ठीक है, ये पिज्जा हो गया, एक पिज्जा है एक पापड़ है। सेगमेंट में भी लेकिन माइनर एक होगा और एक मेजर होगा, और उसी तरह पिज्जा में भी एक माइनर होगा और एक मेजर होगा। आर वी फाइन? So the first theorem says equal chords subtend equal angle at the center। बहुत ही अच्छा भैया, तो एक और कॉर्ड बना लीजिए जो कि एकदम ए बी के बराबर हो, कहीं भी बनाइए। कद बात समान हुआ है कि नहीं? तो बड़ा हुआ है, अभी बोलो, छोड़े नहीं है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर गलत हुआ है तो दीपांशु के लिए, अच्छा हुआ है तो मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी गलत नहीं होता हूँ। ये सीडी है ना, और सीडी में कलर्स वही रखेंगे तभी हमें समझ में आता है। रेडियस रेडियस का रेडियस एंड रेडियस आर ऑलवेज सेम। So how do you prove it these two triangles are congruent? The radius to the radii are congruent and given the chords are congruent, so by SSS कर सकते हैं, सांस भी कभी बहुत ही भी लगा सकते हैं। देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल, yes, ये एंगल भी इक्वल है, और तीसरा एंगल भी इक्वल ना, बस SSS is the best way to prove. So by SSS the two triangles are congruent. Therefore the first thing that you get to know is equal chords subtend equal angles at the center। कहने का मतलब है कि ई एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट टेक अवे चैप्टर का। और यहां से एक और बात आता है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इक्विडिस्टेंट, अच्छा डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखो कैसे याद नहीं रखने का है। मान लो आपके पास एक लकड़ी है, ऐसे लकड़ी, गॉट इट, और यहां पे आपको एक पॉइंट दे दिया है, क्या दे दिया है, इधर एक पॉइंट दे दिया है। किसी ने हमें पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लकड़ी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लकड़ी। तो कोई बोलेगा सर हम तो यहीं से नापे हैं, बहुत बड़ा है, यहां से नापे बहुत छोटा है। तो डिस्टेंस का भी एक प्रोटोकॉल होता है। डिस्टेंस मींस ऑलवेज द शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस बोले तो ये है डिस्टेंस इन फिजिक्स, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया ना? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सोच के देखो ना, सर मैं आपकी बात नहीं मानता, तो यहाँ थोड़ा सा लंबा हो ही जाओगे ना, हाइपोटेन्यूज पैदा हो गया यहाँ पे। So the shortest distance is the perpendicular distance. So when you say a chord, chord is also a line. Chord's distance from the center, center is also a point. तो कौन सा distance होगा?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जाहिर सी बात है। इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सर आपकी बात नहीं मानते, कोई बात नहीं बेटा, छोटे छोटे ट्राइंगल्स देख लो, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, अग्रीड, ये हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस, और फिर क्या हो गया? और ये इसको बाइसेक्ट करेगा क्योंकि दोनों कॉर्ड बराबर है, इट बाइसेक्ट्स बोथ द कॉर्ड। द परपेंडिकुलर ऑफ व्हाट? ऑफ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज आल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसको तो बाइसेक्ट कर देगा, और बाइसेक्ट करते ही दिस तो आरएचएस से ये दोनों। तो कहानी कहां तक आई? कहानी यहां तक आई दैट वी नो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। लेकिन दशरथ का बेटा अगर राम है तो राम के बाप भी दशरथ है, कन्वर्स जानना बहुत जरूरी है, वो ज्यादा जरूरत में आएगा। दैट इज इफ टू chords are subtending equal angles at the center, it means that the chords are equal. Children, whenever you are attacking a problem on circle, please keep your eye open on the converse factor also. Generally हम सिर्फ सीधे फैक्टर में जाते हैं, straight theorems. There can be some converses also. Like sometimes they may just tell you, prove that it is a square, prove that it is a parallelogram, in which you might be having a necessity to prove that the opposite sides are equal. अब लेकिन कन्वर्स काम में आता है। And if two chords are equidistant from the center, then the chords are equal. The chords subtend equal angle at the center. बताइयो भाई, यहां तक कोई दर्द, खांसी वासी? Doubt in segment, like there's a question. हाँ लेते हैं, बाकी यहां तक कोई डाउट? ऋषभ भाई साहब, एनी डाउट? चिल नाउ, ठीक ठाक एकदम, पीछे लेके आराम से बैठा है ऋषभ, पीवीआर गोल्ड में टिकट लिया है। अभी पॉपकॉर्न उपकॉर्न आएगा अभी बीच में, है ना? ठीक ठाक, तो थोड़ा कलम भी चलाइएगा भाई साहब बीच बीच में, इफ इट इज नेसेसरी टू नोट डाउन समथिंग। ओके, so far any query what I have taught? I'll take your question right now itself. Any query? No query, you have understood? So What is locus? locus is a set of point which obeys a certain condition. एक set of points. बुके क्या होता है बेटा? बुके क्या होता है? A collection of flowers. वही गर्लफ्रेंड को देंगे तो कैसा होगा? A bouquet of roses. तो वो हो गया a bouquet of flowers with a special condition. Locus पॉइंट तो बहुत हैं हमारे पास, लेकिन ऐसे पॉइंट जो एक नियम को मानते हैं। कैसा नियम? कि आप एक केंद्र बिंदु से सब लोग इक्विडिस्टेंट पे खड़े हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड लोकस। समझ में आया? चले, वो उसका क्वेश्चन क्या है सुन लेता हूं कितना तक। तो नेक्स्ट पेज, यस, क्या क्वेश्चन है सेगमेंट लेके? हाँ, क्या है क्वेश्चन, जल्दी बोलिए। तो सॉल्व करने का रहेगा, फिर हम लास्ट में करेंगे, नहीं तो ये रुक जाएगा क्वेरी। क्या है, कुछ एरिया वेरिया है क्या? व्हाट इज इट? Like, I got confused. Like, why did they ask this segment? Like, why did they ask to find this segment? व्हाट इज द क्वेश्चन, यू टेल मी ना रे बाबा। ये क्लास डिटेल करने के लिए पहले उन्होंने आई हैव गॉट अ क्वेश्चन पूछा तो क्या सर आई हैव टू फाइंड इट, ऐसे हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, आप पीछे का बुक दो तो, और शायद इसके बाद तुम्हारा वो समोसा एंड ट्राउजर वाला थ्योरम ही है, और तो कुछ है नहीं। I'm checking whether we have left out anything out here. Yes. हो गया, angle subtended by arc, this. Okay, चलिए। So far we are fine. Now we go to arc and angle subtended by arc. चलो थोड़ा सा basics clear करते हैं फिर से। And our basic is all about angle subtended by a chord ले लो, या फिर आप ले लो बाय एन आर्क ले लो। पहले इस चीज को समझते हैं। आइए बनाते हैं एक सुंदर सा गोल। कैसा? बिल्कुल ऐसा। ये हमारा सर्कल है, ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड? राइट। सो फर्स्ट वी विल अटैक इट फ्रॉम कॉर्ड पर्सपेक्टिव, नहीं, फॉर फर्स्ट आर्क पर्सपेक्टिव। आर्क बनाना है तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए। सो लेट these be 2 points and let this be my center of the circle. Have you understood? Right. And I name this as AB, and let's say that the orientation I'm looking at the circle is from this side, मतलब ऐसे सर्कल को देखना है, ठीक है ना? So
my AB forms what is known as the minor arc. बोलो यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है? अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली नाउ, ओके। और जो मेरा BA है, ऐसा छतरी लिखा देते हैं हम, ये बन गया हमारा मेजर आर्क। अच्छा, दोनों ही आर्क सेंटर पे हजूर माफ कर दीजिए करने वाला है, लेकिन ठीक है, आइए देखते हैं उसको। सबसे पहले माइनर आर्क के केस में देखते हैं। लेट्स लुक एट द माइनर आर्क। और माइनर आर्क के लिए आइए, माइनर आर्क। सो माइनर आर्क जो हजूर बोल रहा है ना, वो ये है। द माइनर आर्क इन माय डायग्राम is subtending an angle theta at the center O. How many of you have understood it? The minor arc is subtending an angle theta at the center, which is O. Have you understood? Very good. Now, if you look at the major arc, what is the major arc? The major arc is from B to A. B to A. माइनर आर्क अगर ऐसे बोलता है ना, हजूर माफ कर दीजिए, मेजर आर्क बोलते हैं हजूर माफ कर दीजिए, ऐसे पीछे लेके बोलेगा, देखो ऐसे ऐसे पीछे आ गया उसका। समझ में आ रहा है? तो मेजर आर्क का जो एंगल होगा ना, मेजर आर्क का एंगल है, सो लेट्स लुक एट द एंगल। एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल हुआ मेजर आर्क का एंगल, हो गया रिफ्लेक्स वाला एंगल। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? लेट्स कॉल दिस एंगल एज बीटा, वेयर वी नो दैट बीटा शुड बी इक्वल टू 360 माइनस थीटा। शाबाश, बोलिए क्लियर है? एंगल सबटेंडेड बाय व्हाट यू कॉल एन आर्क, and the arc can be a major arc or a minor arc. Is this concept clear with you? Then we are ready to go to the theorem. And the theorem is seen in 3 parts: samosa, after that trouser, and namaskar. तीन वाला theorem. आइए चलिए। The first one, I'll not write the statement, I'll make the diagram, because in that case it's easier for you to understand the theorem. पहला वाला, मिकी माउस जैसा लग रहा है ना देखने में, बढ़िया, ठीक है। So let's start with the first one. Right. The first one tells me that the angle, angle subtended by an arc at the center of the circle. Sir, what is the arc? The arc is AB. In every question, the arc will be AB. Angle subtended by an arc at the center of a circle is always twice the angle subtended by the same arc at the remaining portion of the circle. ये जो है ये हमारी टेरिटरी है, तो रिमेनिंग क्या हो गया? ये इतना वाला पोर्शन। यहां पे कोई भी एंगल बना ले उसके साथ, मींस दिस आर्क हैज मेड वन एंगल एट द सेंटर। हजूर माफ कर लीजिए, हजूर माफ कर लीजिए इज ट्वाइस, हुजूर माफ कर लीजिए, हुजूर मच्छर जैसा कहीं भी मारते रहेगा ना, वो सबके साथ वो ट्वाइस। क्लियर? आइए तो फिर देखते हैं व्हाट इज द अदर वन। जैसे ये हो गया, ये भी हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए आइए एक और एंगल भी बना दे, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? That means the theorem tells me if this is the center O, now for easy of mathematics I have taken it as 2 theta. Sir, why didn't you take it as theta? अरे बुर्बक, if I take this as theta, this will be theta by 2, theta by 2. हैंडल करने में मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? 2 थीटा। कटहल खरीद के बाजार से आने से एक कटहल थोड़ी लेके आए, 2 लेके आएंगे ना, चलने में आसानी होता है। वैसा ही है मतलब, ठीक है। ये 2 थीटा है, ये थीटा थीटा। This can be a point, say C, this can be a point D. Now try to understand what you have written. Angles, proof we'll see later. Angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by the arc at any point on the remaining part of the circumference of the circle. Have we understood? Now this question can also be seen like this. जैसे
आर्क का तो कोई सवाल ही नहीं दिया आपके साथ, यहां किसी ने कॉर्ड बना दिया, किसी ने कॉर्ड बना दिया। सुनो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी ने कॉर्ड बना दिया। अगर किसी ने कॉर्ड बनाया तो ये वाला एक सेगमेंट बन गया, है ना, तो वो वाला क्या बन गया, दिस इज कश्मीर, दिस इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वैसा हो गया ना। मेजर नहीं, ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलेंगे। ये अगर एक सेगमेंट है तो ये बहुत सारे आईसीएससी बुक्स में लिखा रहेगा ऑल्टरनेट सेगमेंट, ये उसका दूसरा सेगमेंट हो गया। तो यहां अगर हम कॉर्ड के भाषा में इस थ्योरम को देखें तो हम क्या बोलेंगे, एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ कॉर्ड ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अभी हम कॉर्ड के नजरिए से देख रहे हैं, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉर्ड इज फॉर्मिंग वन ट्विक बट बोथ द ट्विक्स आर ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये भी वैलिड है, angles. So whenever you get a problem, also try to see this. That's why this theorem is called what? Trouser theorem. पैंट जैसा लग रहा है ना, पैंट के दो पांव हैं, देखो ऐसे। Understood? Very good. अच्छा, क्या सीखा आपने? Angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circumference. Another perspective from the chord, we will say that angles on the same segment of a circle are equal. समझ में आया? लेकिन आपने यहां कर दिया है थोड़ा सा मनमस्ती। आपको किसने बोला कि ये सिर्फ ऐसा ही आर्क बन सकता है? आर्क तो बीच में भी हमें, दोनों भाई लड़ाकू है, पिज्जा लाओगे तो तुम अपने छोटे भाई को इतना दोगे तो छोड़ देगा क्या? नहीं, मिडिल में भी तो हो सकता है ना। आइए अब हम एक ऐसा एग्जांपल देखते हैं जहां हमारे पास क्या हो जाता है, जहां हमारे पास आर्क ए बी कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह, diametrically opposite. Wow, the arc is diametrically opposite. कैसे है? ऐसे। क्या आजकल जय तुम वाव नहीं बोलते हो? बीच में खूब बोलते थे ना, क्या हो गया? Diametrically opposite. Now whether you see arc AB or you see arc BA, कोई माइनर नहीं, कोई मेजर नहीं, दोनों ही बराबर के हैं। ठीक है, तो यहां पे भी रूल वही लागू होता है। एंगल सबटेंडेड, अब एंगल कैसा है देखो, ये ऐसा था, ऐसा था, इसको हमने क्या किया, हॉरर मूवी की तरह ऐसे खोल दिया, एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। समझ में आया? अब क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एंगल ऑन एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और यहां भी बना सकते हैं, लेकिन ये ट्याव ट्याव में एक चीज भूल गए कि आप ये सब 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज दिस इज डबल ऑफ दैट। और यहां से सृष्टि होता है एक और थ्योरम, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल विच इज द बर्थ फ्रॉम हियर ओनली। जन्म देने वाला वही ब्रह्मदेव है, अलग अलग नाम हो रहा है अभी, और इसको हम बोलते हैं समोसा थ्योरम। देखो एक ड्रॉ करते तो कैसे है, प्याज वाला समोसा जैसा ना, एक समोसा, पैंट, पैंट नहीं, इसको बोलते हैं नमस्कार। ठीक है, क्लियर? एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? इसका बहुत यूज आएगा आपको प्रॉब्लम में, इसका और एक इसका। And it is also supporting the chord wala theorem. Angles on the same segment are equal. है ना? देखने वाले को देखने की नजरिया चाहिए, तो भाई साहब यहां भी तो ये एक सेगमेंट हुआ ना, समझ में आया? अच्छा, जो चीज समझ में नहीं आता है वो है तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा वाला है बहरूपिया मारीच, बन के आएगा हिरन जैसा, लेकिन है तो राक्षस, है ना? ये दिखते हैं और मूड बड़ा अच्छा रहता है ना, पढ़ा के मजा आता है। आइए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में हमने या मान लीजिए इस बार आवर आर्क ए बी इटसेल्फ इज द मेजर आर्क। तो यहां से क्या क्या, यहां जाने के बाद और घुमा दिया अभी, ए बी इटसेल्फ इज द मेजर आर्क। समझ में आया? आइए, अगर ए बी मेजर आर्क है, अगर ए बी मेजर आर्क है तो आइए ए बी आर्क को ऐसे जोड़ देते हैं, और सेंटरवा का है दिवांशु,
सेंटर हुआ है O। और एंगल कैसे मेजर करते हैं जी? एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ये है हमारा 2 थीटा, और वर्ड वही है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by the arc at any point on the remaining part of the circle। फर्क क्या है? यहां पे एक्यूट और ऑब्ट्यूज का रिश्ता होता है, यहां 90 का रिश्ता होता है और स्ट्रेट लाइन का रिश्ता होता है। यहां इधर रिफ्लेक्स हो जाएगा और उधर ऑब्ट्यूज होगा। पहले क्या था? छोटा वाला एंगल एक्यूट, बड़ा वाला एंगल ऑब्ट्यूज। छोटा वाला राइट एंगल, बड़ा वाला स्ट्रेट लाइन। छोटा वाला ऑब्ट्यूज तो बड़का क्या होगा? रिफ्लेक्स। देखो नई बात थोड़ी बता रहे हैं आप, हाँ कहाँ टेंशन लेते हैं। आइए, तो एनी पॉइंट ई हो गया हमारा पॉइंट। समझ आ रहा है दीपांशु? मजा आ रहा है कि नहीं? क्या दिमाग खाते रहता है ये आदमी है ना? और लिख लीजिए फिर, ई ससुरा कितना होगा? थीटा। ये ससुरा भी थीटा। चलिए आइए लिखते हैं, ये होता है हमारा एक्यूट, तो ये होगा हमारा ऑब्ट्यूज। तुम शेर हम सवा शेर, ये राइट। ये क्या होगा? अरे बहुत इंग्लिश बोलते हैं हम तो, स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट। तो ई का है, ई ऑब्ट्यूज है, तो ई का बनेगा रिफ्लेक्सवा। बस ऐसे पढ़ो और आने वाले 4 नर्सल को पढ़ाते जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। और सर्कल में है क्या बोलो? अब अगर तुमसे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो फिर अपनी आंखों में पानी दीजिए और नजर से ढूंढिए, बिकॉज दीज थिंग्स आर हिडन इन द प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम थिंग, व्हाट एडिशनल यू कैन फाइंड इन द प्रॉब्लम? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलने से बेस एंगल्स आर सेम, perpendicular is also the perpendicular bisector, vertically opposite angles हो सकता है, और chord के 2 theorem, equal chords are equidistant from the center, equal chords are equidistant from the center, and another one was equal chords subtend equal angles at the center। देखो मन लगा के पढ़ने से घड़ी में बजा आधे घंटे में एक सर्कलवा हो गया तुम्हारा। वो करेंगे अभी सर्कल का मेन, सर्कलिक क्वाड्रिलेटरल में है ही क्या? हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसके ऑपोजिट एंगल्स हमेशा जोड़ने से 180 डिग्री बनते हैं, है ना? ठीक है, और ढूंढ रहे हैं अभी वो। अच्छा, इसके बाद वाला आ गए हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तब तक अंगद ढूंढता रहे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो एक सर्कल के अंदर कैद है। क्या है? कैद। कैद में है बुलबुल। आइए इस तरह का एक सर्कल बनाइए और इसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल को शहंशाह की तरह कैद कर लीजिए। I just like the CAD वाला, you know, it's so nice, you know, his CAD। ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स का सम एंगल हमेशा 180 होता है। देखिए फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर कोई ऐसे एरा गैरा क्वाड्रिलेटरल दे दिया, कैसा क्वाड्रिलेटरल? एरा गैरा। एरा गैरा में 1 2 3 4 को ऐड करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 360 होगा। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि 4 और 2 को ऐड करने से 180 होगा। लेकिन इसमें 1 है, 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4, ये तो ब्रह्मदेव का रिश्ता है, 360 होगा ही। लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे 180, इन दोनों को जोड़ेंगे 180, और कुछ नहीं है। But you will get more problem from the circle part। हाँ ठीक है, अब हम प्रॉब्लम कर सकते हैं। A chord which is closer to the center shall has to be larger than the chord which is farther away। ऐसे भी सोचो, एक chord कैसा रहता है? सर्कल से यहाँ पे जो chord होगा यहाँ और बड़ा ही होगा, डायमीटर के बाद फिर छोटा होना जाएगा, है ना? In fact, I forgot, I had wanted to put one
a note of one worksheet of work for you guys, so that you would just work on numericals. I'll put it today. Whatever work we studied, एक बार उस worksheet को कर लो. Some questions will be there and some other things. Angad, now your question. We'll stop the recording here because this is the basics. Then we'll take some problems, and if required, we'll record again. ऋषभ बाबू, यहाँ तक कोई डाउट बेटा? नहीं सर, ठीक है। ठीक ही है ना? एकदम बढ़िया लग रहा है सर, बहुत अच्छा है। Sir,